Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is our earth. Learning topics. The earth, our home, land, water, air. The earth, our home. The earth is our home. All living things like plants, animals, birds and humans live on the earth. The earth is made up of land and water. More than 2/3 of the earth is covered with water. The rest of it is land. So, there is more water than land on the earth. The earth has a thick layer of air around it. It is called atmosphere. All living things need land, water and air. तो अर्थ जो है वो हमारा घर है, ना केवल हमारा बल्कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें अर्थ पे ही पॉसिबल हैं। साथ ही साथ हमारी अर्थ पे सर्वाइवल की चीज़ों के लिए लैंड भी है, वाटर भी है, जिसकी वजह से जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बड़ी ही अच्छी से यहाँ पर सर्वाइव कर पा रही हैं। लैंड, वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ लुक डिफरेंट. These are the different landforms of the earth. Plains, plateaus, valley and desert are some of the landforms. तो हमारी अर्थ पे जो लैंड वाला पोर्शन है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों का दिखता है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा लैंड है वो अनइवन है, यानी कि उस पे प्लेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं, प्लाटूज भी हैं और डेजर्ट्स भी हैं। प्लेन्स, द लेवल एंड शेप ऑफ लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर. Vast areas of flat level land are called plains. Plains are best for farming. Most of the big cities are found in the plains. तो आपका जो लैंड होता है वो हर जगह इवन नहीं होता है। जो प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट लैंड होता है और ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा सेफ, फेवरेबल जगह होती है। Plateaus. Hills and mountains are called highlands. A flat-topped highland is called a plateau. The tops of hills and mountains are generally conical. Very high mountains are covered with snow. Many rivers rise from these snow-covered mountains. They make valleys during their course. तो आपके hills and mountains आपके जो आते हैं वो highlands में आते हैं। ऐसे hills and mountains जिनका टॉप फ्लैट होता है उन्हें प्लाटूज कहा जाता है, उनको टेबल लैंड भी कहा जाता है। काफ़ी सारे ऐसे माउंटेन्स या हिल्स होते हैं जो ज़्यादातर कोनिकल इन शेप होते हैं, इनके बीच से रिवर्स निकलती हुई आती हैं और बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो स्नो कवर्ड होते हैं। Valley. A valley is a flat and narrow area of land lying in between the hills and mountains. तो valley वो flat land होता है जो hills और mountains के बीच में होता है। Deserts. Some parts of the land are covered with sand. They are called deserts. There is very less rainfall in the desert. Therefore, there are very few plants and animals in the deserts. Land का वो पार्ट जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और सैंड से ढका हुआ होता है वो डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, पानी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कम से कम प्लांट्स और जानवर देखने को मिलते हैं। Forests. Some parts of the land are covered with thick trees. They are called forests. Many wild animals live in the forests. तो लैंड का वो पार्ट जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रीज देखने को मिलेंगे, थिक ट्रीज, उसको कहा जाता है फॉरेस्ट और काफ़ी सारे वाइल्ड यानी कि जंगली जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Water. A large part of the earth is covered with water. Oceans are the storehouses of water. The ocean water is salty. We can't use it directly, but it comes to the earth in the form of rain. The rainwater flows through rivers. It is also collected in lakes and ponds. तो आपका जो वाटर होता है वो अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ में 70% से भी ज़्यादा पानी है, लेकिन वो ओशियंस के फॉर्म में है जो कि सॉल्टी पानी होता है, ड्रिंक करने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। Some rain water goes below the earth's surface and it is called groundwater. We can get groundwater by digging wells and tube wells. Hand pumps are also used to tap groundwater. काफ़ी सारा जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, उसे कहा जाता है ग्राउंड वाटर और ये आप वेल्स या फिर ट्यूब वेल्स, हैंड पम्प्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। Water is needed for household purposes, irrigation and industries etc. There can be no life on the earth without water. तो पानी जो है वो आपके इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है और बिना पानी के लाइफ बिल्कुल भी संभव नहीं है।
We should always use clean water for drinking and cooking. Some water bodies like rivers, lakes and ponds get polluted because we throw garbage in them. तो ऐसी जो lakes, ponds होती हैं उनका पानी साफ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. ज़्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे lakes या ponds में आपको बहुत सारा कचरा मिलेगा क्योंकि वो हम ही लोग उस पर फेंक देते हैं जिससे कि आपका पानी दूषित हो जाता है. Air. There is air all around us. We can't see it, but we can feel it. Air has weight. If you fill air in balloons, tubes, balls, etc., you will notice that their weight increases. तो आपके आसपास बहुत सारी एयर है. जो एयर होता है उसका वेट भी होता है. कभी भी आप किसी भी चीज़ में जैसे कि बलून में आप एयर भरेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है. Trees and plants give us fresh air. Nowadays, in big cities, the air is getting polluted. If we breathe in the polluted air, we may become sick. आजकल आप देखेंगे कि जितने भी आप सिटीज़ या टाउन्स है वहाँ पे जो हवा है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है जिसकी वजह से हमारे अलग अलग टाइप की बीमारियाँ भी हो रही हैं. जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक साफ हवा का संचालन बनाए रखते हैं. We should grow more and more trees to reduce air pollution. अगर हमें एयर पोल्यूशन कम करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए. Now I know all living things like plants, animals, birds and humans live on the earth. The earth is made up of land and water. It has a thick layer of air around. It is called atmosphere. Plains, plateaus, valley, deserts are different landforms. The water is found in the oceans, rivers, lakes, ponds and below the earth's surface. The ocean water comes to the earth in the form of rain. There is air all around us. We can't see it but we can feel it. We should grow more and more trees to reduce air pollution. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने जाना कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए अर्थ पे एयर, वाटर इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. साथ ही साथ हमने देखा कि लैंड पे किस टाइप के लैंड्स होते हैं. आपके प्लेटूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, हाई लैंड्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, कहाँ पे किस तरीके के रीजन्स होते हैं. साथ ही साथ हमने देखा कि जो हवा है वो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ही आपकी जो हवा है वो साफ रह पाएगी. तो अगर आप चाहते हैं कि एयर पोल्यूशन कम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए. सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है.